Achha. Okay, so this topic is about modeling and control of a single joint. By modeling, we mean mathematical modeling, and by control, we mean how to control the joint to let's say rotate by a certain amount of theta, or rotate with a certain velocity, like in radians per second. Um, so before I go into that, okay, so first of all, we're covering those electric actuators. Like we mean that every joint is being driven by um, electric actuator, like a DC motor. But this could be any kind of actuator, like pneumatic actuator, which are run by like air, by compressed air. It could be hydraulic actuator, which are normally there is a compressed hydraulics in that, fluids in that. So what we are covering is the DC motor is as an actuator, because it's easy to model, it's easy to control, and it's most of the cases it is actually a DC actuator, um, an actuator that runs with a DC current, DC power is at the heart of each joint. Okay, so if you want to see a robot with these actuators, so you can see here. I want to show a real joint. So it looks something like, let's take, I don't know if you can see here, there are motors at each joint. So there is one motor here, there's another motor here, the shoulder, there's another motor here. So all of them are connected to the controller. Think of your controller as your computer. Okay, so you might have seen these quite a lot. These are hobby DC motors. Hobby mean they're just for toys and something. They're extremely small, but the working principle is the same. Similarly, you can have DC motor here at each joint, and if it is not here, it might be somewhere there, and somehow the motion will be transmitted to these joints. So this is what we're gonna model so that we can control it. If you can control one joint, you can control all the joints of a robot. Okay, so we'll go into some mathematical modeling, because that mathematical modeling will help us simulate a certain joint on a computer. Simulation means any input that you give to this and whatever output it gives you, like you give it, let's say you input to it a current and it outputs torque, it generates torque, because it's a DC motor, it converts electrical energy into mechanical energy. जिस तरह आपके पंखे में एक मोटर लगा हुआ है, ठीक है? So simulation will give us equations. Those equations, when we put any input into it, it will give us the same output which a physical system will give us. So it helps us understand the behavior of a physical system through equations, through computer. Okay, so that's why before deriving the entire equations for the whole system, here you can see that the DC motor, here it's represented with an IM. IM is the inertia of the motor, because it's a rotating mass. It's a mass rotating a certain, about an axis of rotation. Okay, so we discussed what inertia is last time. So it's a cylindrical shape, so you know how to find the inertia of this. It's pretty easy. The formula is given in the table in most of the books. And then there is a friction, because obviously this shaft will be hosted inside, let's say, a bearing. And imagine a bearing is not properly lubricated. So there will be more friction. And if you lubricate it, there will be less friction. So that lubrication, that viscous friction, that friction is something that opposes motion. That can be, schematically, that can be shown like this. Like there is a certain fixed support, and there is a friction between the shaft and that. So, but physically, it's a bearing, like like this, and there is always a friction between this, and without this, you cannot have the shaft in the air. It has to be supported by these bearings. Okay, and that's how you fasten it to some structure. And then you let the shaft pass through this passage, this hole, like you call that your load. And this, so because of this, no matter how much lubricant we add,
there will always be friction, and that friction will try to slow down the RPM of this shaft. So this shaft is coming from the motor. This is the motor inertia. The heaviest part in the motor is the rotor itself. There is one stator part, there is one rotor part. I think we discussed this in the previous course on automation, but I'll also go through it again one more time. And then we have gears, because this side of the shaft is rotating at a very high speed. Let's say the RPM is in thousands. And this is the robot arm modeled as an inertia. So think of this as something as, if they have given the diagram. No, there is no diagram, so I'll pull out another. So mathematically this inertia, but physically it looks like this. Okay, so I want to see, yeah, look at this. So this is your DC motor. It has some inertia. Let's say the inertia here is given as 1 into 10 raised to power minus 4 kilogram meter square. And then there are gears. What these gears help us, they're also called transmission mechanism. They transmit motion from one shaft to another shaft. And the reason that one gear is bigger than the other, we want this gear to rotate with a large RPM but less torque. And we want this gear to rotate with a higher RPM, slower RPM and more torque. Okay, so we'll see that what is the mathematics of this gearing system. Okay, but anyway, there will be an input velocity here, radians per second, coming from the motor. Let's call it omega 1. And that will be transmitted through a gearing to this shaft, and ultimately this will rotate with a certain RPM. Let's call it omega 2 or omega x axis or whatever, omega 2. And then there is inertia of this link. Most of the robotic arm looks like this. So you can find the inertia of this through a computer or through any means. Okay, but it's given. And its inertia usually much larger than that. The reason being it's quite a big mass and a big geometry. Okay, and not only that, if you're driving the first joint, so the first joint has to rotate not only in the link attached directly to it, but also the subsequent links. So that's why the motor for the first joint will be larger and has to do more work than the motor for the second joint here. It's not shown. Okay, so every joint is driven by an electric actuator, electric motor. And for this, the inertia, but we call it effective inertia. Effective inertia means inertias of all the links summed up. All the links summed up. Okay. When we focus on one joint, we don't let the other joints rotate so that we can analyze its motion, how it affects the motion of this arm. Okay. In order to achieve that, we'll have some mathematical equation. Okay. So first of all is okay, control of a single joint. Yeah. The first equation is any okay, wait a second. Let's start from here. Okay. So if you remember, whenever we have a current carrying conductor moving inside a magnetic field, पहले तो मुझे जरा रिकॉल कराएं, ये पिछले कोर्स में मैं मोटर थोड़ा ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई किस तरह करंट कैरियंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है. दैट फोर्स if the conductor is in a loop shape, it will make it rotate, it will cause torque. Anyone? किसी को याद हो?
हेलो यस सर 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 ही पढ़ा था। याद है किसी को? क्या हिसाब है? कोई बोलते ही नहीं है। हेलो सर पढ़ा था सर। पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे। ये वीडियो मैं तब भी शायद दिखा चुका हूँ, लेकिन इट्स अ गुड वीडियो टू सी। This one, okay? So it's a current carrying conductor inside here in a magnetic. This is called armature winding. Okay? So if you look at the circuit of that, so it's from here it's connected to the battery like this. So now I'm mostly concerned with modeling. I want to find an equation which behaves exactly like the real system. Okay, so first of all, this is the first equation called, it relates the armature current, IA, the current that passes, it enters from the positive pole of the battery into the coil and goes all the way around and comes back into the battery through the negative pole. Let's call it IA, armature current. Okay, and then the torque that is produced by the motor, the torque. So the torque is produced when we see these two forces acting. Like one is force is acting upward, one is acting downward. They both, when multiplied with this moment arm, this is the axis of rotation, then they generate a torque. So let's call their torque tau m. Okay, tau m. So this equation tells us that tau m is just some gain times the current. So if you increase the current, the more the current drawn by the motor, the more torque it will produce. और इसका हमें we feel it when, let's say, a motor is driving and someone holds this shaft. या चलते हुए पंखे को अगर आप उसके ब्लेड को पकड़ लें और ना घूमने दें, तो जाहिर बात है it will generate more torque क्योंकि इसने घूमना है. ठीक है, तो in order to generate more torque, RPM कम हो गया, torque बढ़ गया, and you are providing the same power. तो power ने कहाँ जाना है? Mechanical power is the product of torque and angular speed. तो अगर एंगुलर स्पीड आप एकदम पंखे की कम कर दें और पीछे से इलेक्ट्रिकल पावर इज द सेम, जो कि आप लेट्स से 100 वाट का है या 200 वाट का पंखा है, तो जब आपने आरपीएम को कम किया तो अब टॉर्क ने बढ़ जाना टू कंपेंसेट फॉर द रिडक्शन इन द आरपीएम. ठीक है, तो जैसे वो टॉर्क ज्यादा अप्लाई करेगा आप पे, तो पीछे से वो करंट ज्यादा ड्रॉ करता है, और जैसे ही करंट ज्यादा ड्रॉ करता है तो करंट को, तो जाहिर बात है आर्मेचर की एक रेजिस्टेंस भी है, जब उस रेजिस्टेंस के साथ करंट मल्टीप्लाई होता है V is equal to IR, तो देयर इज मोर ड्रॉप इन वोल्टेज, एंड दैट ड्रॉप इन वोल्टेज इज अक्रॉस द रेजिस्टर, आर्मेचर रेजिस्टर. मतलब यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ रेजिस्टर एज वेल, क्योंकि ये इतनी लंबी वायर है कि भाई आप इसकी रेजिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते. तो व्हेन द करंट दैट यू सेंड टू इट, the current that you send to it multiplies with the resistance of this coil, it gives you the drop across this coil. It heats up. Why? Because the current is getting more and more, the torque it is producing is more and more, and its IR is giving you a drop which is more. So that's an indication of this equation. That's the realization of this equation, that how a current sent to the armature results in the torque generated by the motor. Okay, and now what happens is, whenever we have a current carrying conductor placed inside this, when a motor is rotating, it acts as a generator. Generator mean ये बिजली प्रोड्यूस भी करता है. मतलब जो भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, जिस तरह
मोटर क्या है? Given electrical energy, it gives you mechanical energy. But the reverse is also true. You can also generate a mechanically rotating a shaft. कभी साइकिल में आपने जिसको डायनामो कहते हैं लोग, आपने पहिए को जितनी तेज घुमाएंगे उधर एक डायनामो लगा होता है, आप समझे एक डीसी मोटर है, उसको जनरेटर कहते हैं. According to the speed of rotation of the shaft, it generates back the electricity. It does exactly the opposite of this. ठीक है? So a motor takes electrical energy as an input and gives output mechanical energy, but a generator takes mechanical energy and gives you electrical energy. Okay. Which is, yeah. So yeah. So the same thing happens here. When the shaft starts rotating, let's say with a speed theta dot m for motor. Okay. The speed of the shaft that is coming from the motor, this one. Or physically, if you want to see, वो तो खैर चला गया. This one, the shaft of the speed of the rotating shaft, because that armature at this end is connected to the shaft. Okay, अभी नहीं दिखाया, अभी दिखाया. So if that is rotating, this shaft is rotating, and this shaft is actually shown here in this diagram as this. Okay, understood? And the bearings are inside here, so that is being shown schematically. It's being shown here, and the armature is shown as an inertia. Okay, so if the speed is there, it will generate a back EMF in the circuit. Back EMF in the circuit means if let's say this is 1000, let's say it's 3 radians per second, there will be a constant called back EMF constant. We can read it from the data sheet. That will be multiplied with that 2 or 3 radians per second and will give you something in volts. You have to subtract that volts from the volts coming from the battery because it is a back EMF. It opposes the voltage that you gave. तो अगर आपने 10 वोल्ट का मोटर है लेट्स से या 12 वोल्ट का मोटर बहुत कॉमन है, तो 12 में से लेट्स से 1 वोल्ट या 0.5 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड that will be subtracted, that is just dissipated, that is, and the rest is creating current in the system. तो अगर आप इसमें अगर आपकी बैटरी है लेट्स से VA जो सेल आपने कनेक्ट किया था इधर, सेल इधर गया, this, let's say the voltage from here is VA, armature voltage. Then if you want to construct a circuit schematic, so this will represent the armature resistance, RA. This will represent the armature inductance because anytime you wind a coil many times, it becomes an inductor. It becomes an inductor. The windings, that is being shown schematically by LA, inductance. The unit is, what is the unit of inductance? Anyone? Unit of inductance, please. Sir, ampere. That is the unit of current. What is the unit of inductance? What is the unit of resistance? Sir, म्यू से जाहिर करते हैं. ओहम सर. ओमेगा से जाहिर करते हैं. ओहम नहीं, ohms. Ohm, ठीक है. Ohms is the unit of resistance. What is the unit of inductance is Henry. H. ठीक है. कौन बोला? Good. And this is voltage, and this is the voltage. It remembers its voltage. V इसको VB भी कहते हैं, back EMF ना, back EMF voltage. It is proportional to the speed. जितनी speed, अगर speed कम है, 0 है, तो there is no back EMF. ठीक है.
बस जैसे ही वो रोटेट करना शुरू कर जाए और बढ़ने लगे तो ये भी बढ़ता है, बढ़ने लगे तो ये भी बढ़ता है, ठीक है। तो शो दिस एज अ सेपरेट वोल्टेज ड्रॉप इन द सिस्टम अक्रॉस द मोटर। तो अब देखें इसकी पोलैरिटी देखें ना, इसका पॉजिटिव राइज यहाँ पे है और ये बैटरी उसके साथ, ये उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि उसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव इसके साथ होता तो ये सीरीज में होते हैं, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव मीन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। तो इक्वेशन क्या बनती है, वी ए माइनस बेक ईएमएफ, इट्स द इनपुट टू द सिस्टम। मतलब इनपुट तो ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, लेकिन बेक ईएमएफ की वजह से उसका एक पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो गया, इसको फीडबैक भी कहते हैं। जो बाकी वोल्टेज बच गई इन दोनों के डिफरेंस से, that will be part of it will be dropped across the inductor and part of it will be dropped across the resistor. So the drop across the resistor is I times A. It's a Ohm's law. And the drop across the inductor is LA, the inductance times the derivative of the current, di by dt, di by dt. इसका मतलब है जब भी सिस्टम में करंट में चेंज होगा उसके इंडक्टर के क्रॉस दे विल बी ड्रॉप, ठीक है। तो चेंज कब होता है, शुरू में बहुत होता है जब करंट बढ़ने लगता है, जीरो से एकदम बढ़ने लगता है किसी खास कांस्टेंट वैल्यू तक। फिर उसके बाद करंट ज्यादातर कांस्टेंट रहता है, थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। फिर आखिर में जब आप पंखे को रोकते हैं या मोटर को स्टॉप करते हैं, देन अगेन यू द चेंज इज डोमिनेंट because you have to come from a constant value all the way to zero. So the derivative is very significant. But anyway, this equation is called, it's a first order differential equation because we only see the first derivative. I dot mean di by dt, the first derivative with respect to time of current. ठीक है, so it's a first order differential equation in I. ठीक है, ये कांस्टेंट्स हैं, इनपुट्स हैं, भाई खैर ये तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, बट ओवरऑल this side is the input to the system, these are the two drops, one drop across this, one drop across this, दोनों सीरीज में लगे हुए, ठीक है। तो this is a representation of the armature circuit of the DC motor, okay, of this circuit. ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके साथ कनेक्ट हुआ, ये इसमें से करंट फ्लो किया, वापस आया ये। तो मॉडलिंग में हमारे लिए ये वायर जो है ना, इट इज नो मोर देन अ सीरीज, अ रेजिस्टर एंड एन इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमने अभी तक पढ़ ली है, तीन, ये टॉर्क एंड करंट रिलेशनशिप, ये वोल्टेज एंड आरपीएम या इसको एंगुलर स्पीड कहें ऑफ द शाफ्ट रिलेशनशिप, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द, इसको Kirchhoff voltage law भी कहते हैं। The sum of rise in a system, there is only one rise, all others are drops, is equal to the sum of the voltage drops in the system. So it's a Kirchhoff voltage law. ठीक है, तीन इक्वेशंस हो गई। अब जनाब अब आ जाए थोड़े मैकेनिकल इक्वेशंस भी हो जाए। ये तो हमने दो इक्वेशंस पढ़ ली, तीन इक्वेशंस पढ़ ली। This was pure, no, this was electromechanical. इसमें ये electric quantity थी, current, और ये जो है left side पे this is mechanical quantity, torque is mechanical thing. इस equation में भी एक mechanical है, so DC is anyway it's an electromechanical system, ठीक है, इसमें electrical की भी components हैं और mechanical के भी components हैं, तो equation भी उसी तरह आएंगे फिर, and this is also electromechanical equation, ठीक है। अब आ जाए जी, हमने इसको मॉडल किया, लेकिन इसकी मैकेनिकल चीजें भी ज्यादा मॉडल नहीं की सिवाय आरपीएम के, इस आई को भी किसी इक्वेशन में नजर आना चाहिए, ठीक है। तो आई की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये गियर सिस्टम के लिए इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए वी नीड इक्वेशन फॉर एवरीथिंग दैट यू सी हियर, इट शुड रिफ्लेक्ट इन वन ऑफ द इक्वेशंस। गियर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड ईटा, ईटा इसको कहते हैं, हाँ जी ईटा,
and this is the ratio, the gear ratio. Gear ratio mean the radius of this to the radius of that. The ratio of the two radius of the gears is called the gear ratio. ठीक है? And if it is this, I take this as my R of the load, RL, और उसके रेडियस को कहूँ RM. So if this is RL over RM, so it will be greater than 1 or less than 1. Anyone? If I define my gear ratio as the radius of the bigger disk to the radius of the smaller disk, so is this ratio less than 1, equal to 1, or more than 1? Big, sir, more than 1. More than 1. ठीक है? तो more than 1 का ये आपको पता है, this is something more than 1. It relates the torques on both sides. इस साइड पे torque tau है, उस साइड पे torque Tm है. It relates it. The torque on the load side is just the gear ratio times the torque on the motor side. ये तो हमें पता है it is more than 1. तो अगर यहाँ पे 1 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है मोटर, ठीक है, लेट्स से वो 1 एम्पेयर या 0.5 एम्पेयर हमने दिया, उसने ये जनरेट किया, हम देखते हैं वहां पे कितना टॉर्क उसको मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने उसको रोटेट करना है ना. ठीक है, ये रोबोट का वो लिंक है. So that torque is just the gear ratio times this. So obviously this is more than 1. So this is giving you an advantage. It is amplifying the torque. So the torque that you get here will be 1 Newton, and let's say your gear ratio is 100 or 10. So it will be 10 times this. We have amplified the torque. गियर का ये कमाल हो गया. और ये आपने नोट किया होगा आपके बाइक में क्या होते हैं, गियर आपने कहते हैं भाई गियर चेंज करो. ठीक है, whenever you change the gear, let's गाड़ी में भी होता है, let's say आप फर्स्ट गियर में जाते हैं, तो फर्स्ट गियर में this ratio is very large. तो जो टॉर्क इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, you get multiplied with something and you get more torque. आपकी गाड़ी लेट्स से चढ़ाई पे आपने चढ़नी है, तो you need more torque. आपने स्पीड कम करनी है और टॉर्क आपको चाहिए कि भाई आप चढ़ सकें ऊपर, तो you need a gear ratio which is more than 1. लेकिन इसका आपको नुकसान क्या होगा, डाउन साइड क्या है इसका, कि भाई अब पावर तो दोनों साइड पे सेम है ना. Tm times theta m dot mechanical power here is equal to the mechanical power there. Mechanical power is the torque times the speed. So torque m times theta m dot is the same as torque times theta dot. Imagine बीच में कोई losses नहीं है. कभी कभी losses होती हैं, ये गियर्स के बीच में भी खुद भी एक फ्रिक्शन होती है, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ. मैं कहता हूँ बस ये परफेक्ट गियर्स है. ठीक है, तो आपको अगर टॉर्क इसने एम्पलीफाई करके दे दिया, तो इसका डाउन साइड ये होगा कि आपको स्पीड रिड्यूस करके देगा. इसीलिए गियर्स को, इस किस्म के गियर्स को स्पीड रिड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि मोटर तो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ घूमती है. हमारे रोबोट की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती. तो ठीक है, हमने स्पीड को रिड्यूस किया, हमने उसको 1/, पे के साथ मल्टीप्लाई किया. तो इफ दिस इज समथिंग मोर देन 1, द रेसिप्रोकल ऑफ दैट विल बी लेस देन 1. इफ दिस इज समथिंग मोर देन 1, लेट्स से ये 2 है, यहाँ 10 है, तो 1/10 विल बी 0.1. तो आपका जो थीटा शाफ्ट की साइड पे है वो होगा इसको किसी नंबर पे डिवाइड करें, क्योंकि इधर ये डिवीजन में जा रहा है, तो वी विल गेट लेस आरपीएम एट द शाफ्ट साइड. तो ये है गियर के दो इक्वेशंस. ठीक है, अब अच्छा when it is great, अच्छा where it is greater than 1. ठीक है, अब हमने एक और इक्वेशन लिखना है, जिस तरह हमने वहां पे लिखा कि भाई इनपुट टू द सिस्टम वाज वोल्टेज and then it was part of it was dropped across the inductor and part of it was dropped across the resistor. इसी तरह इक्वेशन मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए भी होना चाहिए. तो मैकेनिकल सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जिस चीज को आप वोल्टेज कहेंगे या करंट कहेंगे, मैकेनिकल में उसकी जगह टॉर्क है, क्योंकि आपने देखा है कि भाई करंट ही आपको टॉर्क दे रहे हैं. करंट किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो टॉर्क इज द सेम एज करंट. ठीक है, तो इनपुट टू द सिस्टम अब हम कहेंगे Tm है. ठीक है,
अब जनाब हम देखते हैं कि इस टॉर्क का कौन कौन सा पोर्शन कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसका एक पोर्शन इसको एक्सेलरेट करने में जाएगा, इसे आर्मेचर को भी तो हमने एक्सेलरेट करना है ना। तो जिस तरह फोर्स इज द मास टाइम एक्सेलरेशन, torque is the inertia times angular acceleration. So it will be the inertia of the motor times the angular acceleration of the motor. This one. ये torque दे रहे हैं मुझे. So this was the input torque. Part of it went into accelerating the inertia. तो देखें ये टॉर्क शुरू में ये लॉस है, आपका लॉस है, क्योंकि आपने इसको अगर हरकत में लाना है तो आपने ये आर्मेचर को भी रोटेट करना है। आर्मेचर की अपनी भी एक इनर्शिया, वो रेजिस्ट करते हैं, इनर्शिया मीन रेजिस्टेंस मोशन, आपने उसको ओवरकम करना है। तो पार्ट ऑफ दिस टॉर्क विल गो इन एक्सेलरेटिंग दिस बॉडी, ठीक है, एंड दैट इज दिस। और ये शुरू में बड़ा डोमिनेंट होता है कि मैंने आपको कहा ना, शुरू में वो ट्रेपेजॉइडल वेलोसिटी प्रोफाइल याद करें, शुरू में हमने एक्सेलरेट होना होता है, फिर बहुत टाइम की हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होते हैं, एक्सेलरेशन जीरो होता है, फिर सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होते हैं, एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये टॉर्क शुरू में डोमिनेंट होता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर आखिर में फिर जब हम डीसेलरेट करते हैं तो ये टॉर्क अपेयर हो जाता है। ये डायनेमिक टॉर्क है। डायनेमिक टॉर्क में इसका ताल्लुक मोशन से है, मोशन कम ज्यादा होने पे ये वैल्यू कम या ज्यादा होती है। इट्स डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, ये वाला टॉर्क ये भी कहीं पे कंज्यूम हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, कहाँ पे? ये फ्रिक्शन में जा रहा है, जो आपने इधर लुब्रिकेंट लगाए हैं ना। तो फ्रिक्शनल टॉर्क इज समथिंग, बीएम, इसको विस्कोसिटी भी कहते हैं, विस्कस कोएफिशिएंट भी कहते हैं बीएम को, टाइम्स द वेलोसिटी। विस्कस ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक वेलोसिटी से है, सॉरी फ्रिक्शन ऐसी चीज है, विस्कस फ्रिक्शन कि इसका ताल्लुक वेलोसिटी से है। वेलोसिटी ज्यादा तो विस्कस फ्रिक्शन ज्यादा, चीज गर्म हो जाती है। जितनी तेजी से घूमती है उतनी ज्यादा गर्म होती है, जितनी स्लो घूमती है उतनी कम गर्म होती है। वो गर्म होना क्या है? वो फ्रिक्शन है एक्चुअली, जो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम जो इसमें वो लुब्रिकेंट डालते हैं वो ऐसा डालते हैं कि भाई उसका हीट बहुत भी बढ़े तो वो लुब्रिकेंट उसको कुछ हो ना, ठीक है, वो डिकम्पोज ना हो, ठीक है। तो पानी तो आप नहीं डाल सकते, जाहिर बात है, कोई ऑयल डालेंगे जिसका ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, सॉरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम होता है। हम चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पे हमें लुब्रिकेंट डाल के हमें फ्रिक्शन कम से कम मिले, लेकिन 12 पार्ट ऑफ इट इनपुट टॉर्क विल बी गोइंग इनटू दिस। और ये जब तक आप मोटर चला रहे हैं तब तक ये लॉस है। ये नहीं है कि भाई शुरू में ये था और दरमियान में नहीं था और आखिर में फिर था, ये थ्रू आउट है। whenever the motor shaft is spinning there will be friction loss। और आखिरी जो है वो बचता है भाई, जिस तरह ये दो चीजें गियर से पहले हैं, inertial torque and torque due to friction, inertial torque एंड टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। इस तरह इस साइड पे भी ये दो चीजें हैं, उधर भी फ्रिक्शन है, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बीएम से रिप्रेजेंट किया था, और उधर भी इनर्शिया है, लिंक इनर्शिया। तो जिस तरह इसके लिए इक्वेशन लिखी है, आई एम टाइम्स थीटा एम डबल डॉट प्लस बी एम टाइम्स थीटा एम डॉट, इस तरह उसके लिए भी इक्वेशन है, आई टाइम्स थीटा डबल डॉट प्लस बी टाइम्स थीटा डॉट। ये दो चीजें उधर पे हैं, लेकिन वो इनके साथ डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बीच में गियर्स इन्वॉल्व हैं। तो जब गियर्स इन्वॉल्व हैं तो गियर रेशो से इनको डिवाइड कर दें, गियर रेशो से इनको डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि अगर उस साइड पे एक्सेलरेशन है, अगर उस साइड पे एक्सेलरेशन है तो एक मिनट, थीटा, हाँ, हमने इनको लाना है जी मोटर के साइड पे, ठीक है। तो थीटा डॉट को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हम नहीं, आई हैव टू कंफर्म दिस, ठीक है। ये भी लेस देन अ मिनट है, ये खत्म हो जाए तो आई स्टार्ट डूइंग दिस अगेन, कि भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करना पड़ा है। आई एक्सप्लेन दिस पोर्शन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एंड देन विल नेक्स्ट इज जस्ट डेरिवेशन बेस्ड ऑन दैट, ओके।
So I'll stop this meeting and I'll start again. Acha. So this will be 1 over eta. The reason is this guy has already 1 over eta. Look, जिस तरह theta dot 1 over eta times theta dot m के बराबर है, उस तरह theta double dot b 1 over eta times theta double dot के बराबर है. ठीक है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें तो दिस सेम आपने एक्सेलरेशंस को भी 1 over n पे डिवाइड कर 1 over eta पे डिवाइड करना. तो देयर इज अ 1 over eta in there is already. वो ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, we will get this equation. अब जरा इस इक्वेशन से ये किस तरह डिराइव करेंगे, लेट्स सी दिस. अच्छा, सबसे पहले तो हाँ जी, yes I got it. Torque generated by the motor, part of it goes in this, part of it goes in this. अब इधर जो दो टॉर्क हैं इधर, वो I टाइम्स थीटा डबल डॉट है और B टाइम थीटा डॉट है. टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन एंड टॉर्क ड्यू टू इनर्शिया. लेकिन उसको इनके दो टॉर्क के साथ जमा करने से पहले टॉर्क को हमने कहा है कि जो भी मोटर साइड पे टॉर्क है वो लोड साइड के टॉर्क को 1 over eta पे डिवाइड करेंगे तो मोटर साइड की टॉर्क हमारे पास आएगा. ये इस इक्वेशन को बिल्कुल, अगर आपको टॉर्क m चाहिए तो इस टॉर्क को 1 over eta पे डिवाइड कर दें. तो ये वाली जो टॉर्क है ये तो लोड साइड पे है, इनर्शियल टॉर्क है. इसको मोटर साइड पे टॉर्क के साथ जमा करने के लिए 1 over eta से गुजरना पड़ेगा ताकि ये कंसिस्टेंट हो. हम टॉर्क को एक ही साइड पे ला के जमा कर रहे हैं. एंड सिमिलरली फॉर दिस टॉर्क जो उस साइड पे है, उसको इसके फ्रिक्शन टॉर्क के साथ, लेकिन सारे फ्रिक्शन टॉर्क आपस में ऐड कर लेंगे, सारे इनर्शियल टॉर्क आपस में ऐड करेंगे. लेकिन उधर जो इनर्शियल टॉर्क है, इधर जो भी टॉर्क है उसको इस साइड पे लाने के लिए इस गियर से गुजरना पड़ेगा, 1 over eta पे डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, so that's the reason behind 1 over eta. Any question about this? इसको कहते हैं डायनेमिक इक्वेशन और इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. ये आपने, ये वो F इज इक्वल टू एम ए है, ए वॉज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, लेकिन इस बार चीजें बढ़ गई ना, फ्रिक्शन भी उसमें है और रोटेशनल क्वांटिटीज हैं और ए कपल्ड सिस्टम है, उस साइड पे भी इनर्शिया, इस साइड पे भी इनर्शिया, बीच में कपलर है, गियर्स. ठीक है, दिस इज द कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहें इसको, क्योंकि given torque I can give you how much will the system accelerate with, what will be acceleration of the system. Or if you want me to accelerate the system by a known quantity like 2 radian per second square, I know how to derive the input torque. So it's an equation of motion, how to generate a desired motion. Okay, third equation, it's purely mechanical, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रिकल नहीं था. अभी हम कनेक्शन दोनों के बीच में निकालेंगे. But before we do that, know the quantities. I repeat, this is inertia of the motor. This is the coefficient friction, viscous friction coefficient of the motor. बेयरिंग जो लगे हुए हैं, इस तरह यहाँ पे एक और बेयरिंग लगा हुआ है, उसका जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट. ये हर बेयरिंग के या हर जो भी वो आप लेंगे भी आपको उनके डेटा शीट से मिलेगा, बेयरिंग जब आप लेंगे. ठीक है, इसको डैम्पर भी कहते हैं. ये डैम्प करता है मोशन को, स्लो डाउन करता है. ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब थोड़ा सा इनर्शियल टॉर्क को आपस में ऐड करते हैं. तो हमें पता है ये भी इनर्शियल टॉर्क है और ये भी इनर्शियल टॉर्क है. ठीक है, लेकिन ऐड करने के लिए इस थीटा डबल डॉट से छुटकारा पा लें तो अच्छा. क्यों? क्योंकि इधर तो थीटा एम डबल डॉट है ना, तो एक्सेलरेशन भी फिर सेम होने चाहिए. तो उस एक्सेलरेशन की जगह आप लाएंगे थीटा एम डबल डॉट. तो रिप्लेस हियर 1 over eta टाइम्स थीटा डबल डॉट एम इसकी जगह, और थीटा डॉट की जगह रिप्लेस कर दे 1 over eta टाइम्स थीटा डॉट एम. फिर इधर प्लग इन कर दें और थीटा एम डॉट कॉमन ले लें तो आई एम प्लस 1 over eta स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक 1 over eta वहां से आ रहा है. ये जो शाफ्ट साइड की क्वांटिटीज थी वो मैंने मोटर साइड पे रिप्रेजेंट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, चेंज में नहीं कर रहा.
इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस। तो आई गॉट दिस, और इसी तरह इसके साथ भी कर लें, थीटा डॉट को की जगह ये रिप्लेस कर लें, तो आपके पास 1 ओवर ईटा स्क्वायर टाइम्स थीटा डॉट एम आ जाएगा। और फिर इसके साथ उससे कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा बी एम प्लस बी ओवर दिस। अब आप देख रहे हैं कि भाई ईटा का रोल इनर्शियाज में भी है। हमें मोटर का इनर्शिया इधर फील हो रहा है, लेकिन गियर रेशो जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमें ये वाला पोर्शन बहुत कम मिलेगा। वी विल नॉट फील, और इन अदर वर्ड्स द इनर्शिया ऑफ द लिंक विल नॉट रिफ्लेक्ट टू द मोटर, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बीच में हमने ये लगाया हुआ है। ठीक है, 12 लेने में आई डोंट एक्सप्लेन दैट इन टू मच डिटेल। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, ये इसी इक्वेशन को हमने मोटर साइड पे लिखा, लेकिन हम इसी इक्वेशन को लोड साइड भी लिख सकते थे। वो क्या करते, अब यहां इसको थीटा एम की जगह रिप्लेस किया ना, इसकी जगह थीटा एम एम को रिप्लेस किया, फिर हम थीटा एम को हर जगह इससे रिप्लेस करते हैं, तो देन वी वुड गेट दिस। लेकिन फिलहाल लेट्स गो अहेड विद एनी ऑफ दिस इक्वेशन, दैट वन और दिस। ये आपको असाइनमेंट में दे दूंगा कि इस इक्वेशन से ये कैसे आता है, या इन ऊपर के इक्वेशन से ये कैसे आता है। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेंगे द टर्म दिस। अच्छा, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पे न्यूमेरिकल है, लेट्स डू इट। इधर देखें जी, आई डोंट वांट दिस टीएम, इसकी जगह मैं लो टॉर्क चाहता हूं, तो टीएम की जगह लो टॉर्क लाने के लिए इस ईटा को साइड पे ले जाओ, टी ओवर ईटा इधर ले आओ, टा ओवर ईटा, और इधर क्या करो, आई एम इसकी थीटा डबल डॉट एम की जगह थीटा डबल डॉट को ले आओ, शाफ्ट इनर्शिया, शाफ्ट एक्सेलरेशन। तो उसके लिए ये उधर जाना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा कर लूं कहीं रिटर्न। ओके, कैसे, खैर इतना तो आप लोग कर लेंगे कि भाई ये इक्वेशन इन्हीं से आता है, जस्ट बाय यूटिलाइजिंग दोस टू इक्वेशंस। ठीक है, तो आई लीव दैट एज एन असाइनमेंट, आई जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि इसका मतलब क्या है। ये जो आपके पास टर्म है, ये जो भी है बीच में सिर्फ ये रेशो है, वरना ये इनर्शिया प्लस इनर्शिया है, दोनों इनर्शिया बना रहे हैं। हम इसको इफेक्टिव इनर्शिया कहते हैं, उसकी वजह ये कि ये रोटर की लिंक की इनर्शिया है और ये मोटर आर्मेचर की इनर्शिया है, जब दोनों ऐड हो रहे हैं। अब इस गियर रेशो ने क्या किया, इट इज समथिंग ग्रेटर देन 1, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ये और भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपका ये जो क्वांटिटी है, बिकॉज ऑफ द गियर्स यू फील मोर इनर्शिया एट द लोड, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, द टर्म दिस इज समटाइम कॉल्ड द इफेक्टिव इनर्शिया सीन एट द आउटपुट ऑफ द गियरिंग। Likewise, the term this is the effective damping. ठीक है, note that in a highly geared joint, when n is way greater than 1, the inertia of the motor rotor can be significant portion of this. देखिए, इफेक्टिव इनर्शिया का मतलब क्या है। लेट्स से आप एक डोर को ऑटोमेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं इसके जॉइंट पे एक मोटर लगाना चाहता हूँ, जब बंदा आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये खुद ही खुलेगा। अब इस दरवाजे का अपने एक इनर्शिया है, लेकिन बात यह है कि जब इसको रोटेट करेंगे तो मोटर को भी तो कहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। तो जो हम पावर प्रोवाइड करेंगे वो मोटर को पहले मोशन में लाएंगे, फिर जाके मोटर जॉइंट को रोटेट करेगा, दरवाजे को रोटेट करेगा। तो अगर आपने मोटर बहुत ज्यादा बड़ी लगाई है, नंबर 1, तो ये इनर्शिया आपका बहुत ज्यादा होगा, तो उसका उसका नुकसान ये होगा कि आपकी इनर्शियल टॉर्क में डिसिपेशन, आप खामखा बिजली लॉस जाया कर रहे हैं। ठीक, इट्स अ टॉर्क, इनर्शियल टॉर्क। ठीक है, या आपने मोटर छोटा लगा दिया लेकिन गियर्स बड़े लगा लिए जॉइंट में, तो उसकी वजह से भी यू आर हैविंग मोर इनर्शियल टॉर्क्स। ठीक है,
वी वांट टू कीप इट एज मिनिमल एज स्मॉल, ठीक है। डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम में गियर्स नहीं होते, डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम में ये शाफ्ट डायरेक्टली उसको, तो दरवाजों के केस में तो डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम होता है ना, देखें डीसी मोटर ड्राइविंग डोर हिंज, ठीक है। अब ये देखें, ये डायरेक्ट ड्राइव नहीं है, इसमें गियर बल्कि पुली है, लेकिन 12 दैट गियर एंड दिस गियर इसी का रेशो लेंगे। लेकिन डायरेक्ट ड्राइव आपने देखना है तो आ, ये देखते हैं ये डायरेक्ट ड्राइव है कि नहीं। ये भी डायरेक्ट ड्राइव नहीं हो सकता, ठीक है। बीच में मैकेनिज्म है क्योंकि मोशन उसके शाफ्ट से इधर ट्रांसफर कर रहा है। ये देखें, ये डोर को रोटेट करने करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, इधर देखें, इज इट डायरेक्ट ड्राइव सिस्टम और इज इट कपल्ड गियर्ड सिस्टम? हेलो हेलो, अच्छा ये बताएं, इज इट डायरेक्ट ड्रिवन और नॉट? ये वाला मोटर जो है ना, ये इस डिश को वर्टिकली ए जी एक्सिस एजिमुथ इसको कहते हैं, बस जो भी है उसके अराउंड रोटेट करता है। और ये वाली जो मोटर, जी सर ये डायरेक्ट नहीं है सर। डायरेक्ट इसलिए नहीं है कि देखें इसका शाफ्ट इधर है और रोटेशन एक्सिस उधर है, तो ये बीच में गियर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। गुड। तो इसी तरह हमारा रोबोट आर्म, बहुत कम रोबोट आर्म होंगे, मोस्टली दे आर नॉट डायरेक्ट ड्रिवन, ठीक है। मैं डायरेक्ट ड्रिवन रोबोट joint, if I can see an example, let's just say ये कहते हैं कि भाई ये डायरेक्ट ड्रिवन है, ठीक, मोटर उधर ही लगा हुआ है, गियर्स वगैरह नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन है क्योंकि मोटर के शाफ्ट को आपने किसी बेयरिंग में सपोर्ट करना है, और स्टेपर मोटर है, ठीक है। खैर ये मैं अपेरेंटली लग रहा है कि डायरेक्ट ड्रिवन है, बट वी नीड टू वेरीफाई। ये वाला, अच्छा, इसमें देखें गियर्स इधर लगे हुए हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट डायरेक्टली ड्रिवन। बहरहाल एनीवे, इससे ज्यादा हमारे लिए बहुत अच्छा इधर लिंक है, ये जॉइंट है, आ, इसके गियर्स अक्सर, अच्छा गियर्स के फिर बड़ी किस्में हैं, अच्छा गियर्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके ये दो हों, ये इस तरह के हों, ठीक है। गियर्स ऐसे भी पॉसिबल हैं गियर्स, इसको देखें जरा, ये घूमता है, ठीक है, तो दिस इज वन गियर एंड द आउटर इज अनदर गियर, ठीक है। तो 12 अब मैं गियर्स के डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेट्स कम बैक टू द लेक्चर एंड फिनिश इट। इक्वेशंस किधर थे, यहाँ तक पहुंचे। अभी आप ये एग्जांपल कर सकते हैं, लेट्स से द apparent link inertia is I varies between this and this, ठीक है। अच्छा याद रखें, ये जो inertia है ये कांस्टेंट कभी नहीं होता, उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरू में जो डायग्राम बताई है, इफ आई कैन फाइंड इट क्विकली अगेन, समवेयर शुरू में बड़ा जबरदस्त है। इसको हम अच्छा, ये नोट्स भी आपके लिए ज़रूरी है। MIT Introduction to Robotics, MIT, and teacher was Henry Asada. I can find his notes. उसमें इसने ये चैप्टर बड़ा प्यारा दिया हुआ है,
lecture notes and control में होगा शायद, बल्कि डायनेमिक्स में था आज। नहीं, आई वांट टू सी दैट जॉइंट। बड़े जबरदस्त इसने एक डायग्राम दी थी। रोबोट मैकेनिज्म नहीं, differential motion statics, no actuators, sorry, the drive system। ये मोटर आपका हो गया जी, ये इसके इक्वेशंस हो गए, ये हम पढ़ रहे हैं अभी, ये है। ठीक है, तो देखिए इनर्शिया, इसका इनर्शिया कांस्टेंट इसलिए नहीं है कि हमें पता है कि इस वक्त तो ये लेट से जॉइंट 1 है और ये जॉइंट 2 है, तो जॉइंट 2 को हमने फ्रीज किया हुआ है, तो इसका इनर्शिया भी तो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जॉइंट 2 इसने ये लिंक एंगल चेंज कर दिया, फिर क्या होगा, मास तो सेम है, इनर्शिया चेंज होगा। रिमेंबर, मास इनर्शिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वे द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the geometry of the object। तो जियोमेट्री चेंज होगी तो इनर्शिया चेंज होगा। तो आप कहने का मेरा मतलब है कि दिस आई इज changing, so that's why they haven't given you constant load inertia, they have given you a range, उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और रोटर इनर्शिया कांस्टेंट है क्योंकि मोटर हम इस वक्त एक ही जो मोटर लगाई है वही है। एंड गियर रेशियो इज गिवन 30। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम इफेक्टिव इनर्शिया, तो सिर्फ उस में इक्वेट करना है, तो इट्स न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, flexibility I'm not gonna touch on that। let's say इसका जो कंट्रोल है, I want to do this। ठीक है, अच्छा, ये कंट्रोल तो खैर उन्होंने बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया। मैं थोड़ा सा यहाँ से एक चीज उठाता हूँ, ये इक्वेशन अभी थोड़ी सी नोटेशन चेंज होगी तो लेकिन खैर है, उसने टॉपिक को उधर अधूरा काइंड ऑफ, इट्स नॉट कंप्लीट। एक मिनट, अच्छा, देखते हैं कि यहाँ से हमने, ठीक है, लोड इनर्शिया, दिस इज लोड, ठीक है, एंड इफेक्टिव इनर्शिया, ठीक है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ ठीक है। तो अब मैं इससे आगे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊंगा एंड देन आई विल स्टॉप। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग बस इतनी है जितनी हमने पढ़ ली, दैट्स मोर देन इनफ। इक्वेशन जो हमने पढ़ी है, और बस थोड़े से ये 3 इक्वेशन में एक्सप्लेन कर लूँ। ठीक है, नहीं अभी नहीं, इट्स टू अर्ली फॉर दैट। सो लेट्स डू दिस कि भाई डीसी मोटर को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कैसे करेंगे, किसी माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू या किसी उसके थ्रू, क्या नाम है उसका, किसी भी कंट्रोलर के थ्रू, पीएलसी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, उसका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो दिस इज द सर्किट। आपने यहाँ से इसको इनपुट वोल्टेज देनी है, लेकिन अभी इनपुट वोल्टेज बैटरी की जगह हम देंगे लेट से किसी डिवाइस से, माइक्रो कंट्रोलर से, एंड देयर विल बी अ रेजिस्टर एंड देयर विल बी मोटर, और नीचे ट्रांजिस्टर लगाएंगे। उसकी वजह यह कि हम इस मोटर को जो वोल्टेज देंगे, तो वीसीसी को अगर वीसीई है, अच्छा, तो बेस पे अगर कोई वोल्टेज देंगे तो इट विल बी इनेबल्ड, द पाथ विल बी एस्टैब्लिश्ड।
और इसको अगर कोई 0 वोल्टेज देंगे तो इट विल बी डिसेबल, पाथ विल नॉट बी एस्टेब्लिश। तो हम जो वोल्टेज मोटर को देंगे वो इस तरह देंगे, हम इसको ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए और ऑफ करेंगे फिर थोड़ी देर, और ऑन ऑफ हमें कौन दे रहे, ये हम यहाँ पे 1 देंगे लेट्स से माइक्रो कंट्रोलर से या कहीं से भी, तो ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो ये जो वोल्टेज हमने इसको दी हुई है दैट विल गो थ्रू द मोटर, मोटर विल स्टार्ट स्पिनिंग, ठीक है। और जब थोड़ी देर बाद हम इसको ऑफ करेंगे तो वी आर गिविंग नो वोल्टेज टू द मोटर। अब देखने में तो ऐसा नजर आ रहा है कि जितने टाइम के लिए हमने इसको ऑन रखा ये चलती रहेगी मोटर, और जितने टाइम के लिए ऑफ किया इट विल स्टॉप। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप लेट से 1 सेकंड के लिए इसको ऑन करते हैं, 2 सेकंड के लिए और 1 सेकंड के लिए ऑफ करते हैं, तो फिर आपको नजर आएगा कि मोटर चल रही है और रुक रही है, चल रही है और रुक रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑन ऑफ मैं कर रहा हूं ये 1000 टाइम्स अ सेकंड कर रहा हूं, 1000 टाइम्स अ सेकंड, तो क्या मोटर के बिहेवियर को आप जरा जब देखेंगे आ, उसके ऑपरेशन को विद योर आईज, तो आपको लगेगा कि ये रुक रहे और फिर से चल रहे हैं। नो सर, पता नहीं चलेगा सर, पता नहीं चलेगा, very fast लेकिन है। उसका फिर उसकी स्पीड पे फिर भी असर होगा। उसकी वजह ये है कि ये वो वोल्टेज है जो बजाय इसके कि आप उसको परमानेंटली हाई दें, आप उसका एक पोर्शन जानबूझ के ऑफ करते हैं। तो लेट्स से दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस, इस वेव को कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ना। लेट्स से ये एक पल्स है, तो इस पल्स में अगर मैंने 2/3 टाइम के लिए, लेट्स से ये 1 सेकंड तो अब नहीं, 1 मिली सेकंड, 2/3 के लिए ऑन कर दिया, 1/3 के लिए ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब है 60%। दिस 60% विल बी एक्चुअली ऑफ दिस वोल्टेज। तो 60% ऑफ दिस वोल्टेज जैसे 12 है और आप इसको 60 वोल्टेज इफेक्टिवली इसको दे रहे हैं, तो या 10 ले लें तो 10 का 60% 6 वोल्ट होगा। तो मोटर को ऐसे लगेगा जैसे इसको 6 वोल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि आप उसको ऑन ऑफ पेशन में उसको दे रहे हैं, ठीक है। अब एज कंपेयर टू आप ड्यूटी साइकिल को और भी कम कर दें, 25% कर दें, तो अब आप इसको दे तो 10 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन इसको इफेक्टिवली जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2.5 वोल्ट, 25%, ठीक है। तो जब 25% इसको मिल रहा है तो इसकी स्पीड कम होगी या इसकी टॉर्क कम होगी, इसको पावर कम मिल रहा है, इसको पावर कम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये पढ़िए जरूरी है। PW, a single cycle of on-off state is called a PWM period, whereas the percentage of the on state is a single period is called duty rate, ठीक है। अगर आपने 2/3 टाइम के लिए ऑन रखे 1/3 के लिए ऑफ रखा है, तो ऑन टाइम ओवर टोटल टाइम 2 और 3 इसके परसेंटेज में दिखा दें तो इट इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल, ठीक है। द फर्स्ट PWM signal is of 60% duty cycle and the second is 25% duty cycle. If the supply voltage is 10 volt, the average voltage is 6 volt for from this sensor and 2.5 volt from this sensor. तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगरचे इसके टर्मिनल पे आपने 10 वोल्ट सेलेक्ट किए हुए, लेकिन जो ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन है उसमें उसको तोड़ते हैं आप और फिर से बनाते हैं, तोड़ते हैं और फिर से बनाते हैं, और इतनी तेजी से बनाते हैं आपका मतलब बेसिकली ये है कि ये 10 वोल्ट का एक पोर्शन इसको मिले एवरेज, सारे का सारा ना मिले। अगर आप चाहते हैं कि सारे का सारा इसको मिल जाए तो इसको परमानेंटली ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इसका कुछ भी इसको ना मिले इसको परमानेंटली ऑफ कर दें। अगर आप चाहते हैं इसका हाफ इसको मिल जाए तो इसको 50% ऑफ द टाइम के लिए ऑन कर दें, 50% ऑफ द टाइम के लिए ऑफ कर दें। और किसी माइक्रो कंट्रोलर के लिए ये करना बहुत ज्यादा आसान है कि 1000 किलो हर्ट्ज पे, मतलब 1 मिली सेकंड के बाद एक के अंदर ही कुछ पोर्शन के लिए इसको ऑन करें और कुछ पोर्शन के लिए इसको ऑफ करें, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर तो 100 मिलियंस ऑफ साइकिल्स अ सेकंड पे काम करते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जब ये इसको देंगे मोटर को, तो मोटर क्या करता है, इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिक टाइम कांस्टेंट है, लेट्स से आपने इसको ऑन किया मोटर को
मोटर ने लेट से चलना, उसको वोल्टेज ज्यादा मिलना शुरू हुआ, जैसे आपने ऑफ किया फिर थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि दिस इज माय एवरेज वोल्टेज। और अगर आप उसको बहुत कम करते हैं, ठीक है, तो करंट टू द मोटर इज स्मूथ ड्यू टू इंडक्टेंस। तो यहाँ पे जनाब करंट बहुत स्मूथ है, यहाँ पे ऑन ऑफ है। तो इसकी वजह से अगर करंट ज्यादा है एवरेज उसका, तो उसकी टॉर्क ज्यादा होगी, ठीक है। अगर टी ई बहुत ज्यादा है टाइम कांस्टेंट, ये हर मोटर का अपना एक टाइम कांस्टेंट होता है। और अगर मोटर का टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा कम है हमारे टाइम पीरियड से, तो फिर वी विल सी ऑन एंड ऑफ, कि भाई उसको करंट मिल रही है, फिर बीच में ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर ऑफ। 12 ये तो खैर हो गया। अब मैं आपको इसका साइकिल बताता हूँ, सर्किट बताता हूँ कि नॉर्मली हमने क्या करना है कि मोटर को हमने 4 वो लगाने हैं ट्रांजिस्टर्स, उसको गेट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रांजिस्टर है, इसको मॉसफेट कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर इज अ वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज डिवाइस, इसको जैसी वोल्टेज देंगे ये इधर ऑन होगा, कम जीरो वोल्टेज देंगे ये ऑफ होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कि वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल होता है, ये मैं पिछले कोर्स में पढ़ा चुका हूँ। इस तरह के अगर मैं 4 लगा लूं ट्रांजिस्टर, ए बी सी डी, और इसको ऑन करूं, ऑन मीन इसके बेस, इसके गेट पे हाई वोल्टेज दे दो, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑन मीन इसका नीचे से कनेक्शन क्लोज्ड हो जाएगा, इट विल बी क्लोज सर्किट, इट विल बी कनेक्टेड जस्ट एज अ वायर इज कनेक्टेड। रिप्रेजेंट दैट एज लाइक दिस, ऑन। गेट बी पे जो ट्रांजिस्टर है उसको ऑफ कर दें, उसको 0 वोल्ट दे दें गेट पे यहां से, और गेट सी पे जो ट्रांजिस्टर है उसको भी 0 वोल्ट दे दें और इसको भी ऑफ कर दें। अब क्या होगा, अब जब यहां से आप वोल्टेज देंगे तो करंट ये इसके थ्रू तो नहीं जाएगा ना, ये तो ओपन सर्किट है, करंट विल ऑलवेज फॉलो द क्लोज सर्किट। तो ये यहां से आता हुआ इधर जाएगा, इसको मिल जाएगा मोटर को, आर्मेचर को, एंड इट विल गो थ्रू हियर एंड इट विल कनेक्ट विद द ग्राउंड। तो इस आपने पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, द मोटर विल स्टार्ट स्पिनिंग इन फॉरवर्ड मोशन। लेट्स से फॉरवर्ड मोशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो या तो मोटर की, अच्छा अब क्या करें जी, अब आपने मोट गेट ए को ऑफ कर दिया, ठीक है, और इसको आपने, वो जो 2 ऑन थे उनको ऑफ कर दिया, जो 2 ऑफ थे उनको ऑन कर दिया। Now the voltage will go through here from the other end to this end and the motor will start in the reverse direction. तो ये 4 ट्रांजिस्टर हैं, इनके ऑन ऑफ पे हम मोटर को एक डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में घूमना था तो फिर एक ही ट्रांजिस्टर आपके लिए काफी था, दिस वन। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके डायरेक्शन को भी हमारे हाथ में आ जाए, तो इस तरह के हम 4 ट्रांजिस्टर लगाएंगे, ठीक है। एंड दे विल लुक लाइक, इसको एच ब्रिज कहते हैं क्योंकि हमने एच की शक्ल में इसको ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया। और अगर मैं ये भी ऑन कर दूं, सारे ऑन कर दूं, तो बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है मोटर के साथ, तो द मोटर विल स्टॉप। और अगर मैं नीचे वाली 2 सेलेक्ट कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्रेक, रुक जाओ, मोटर चल रही थी और हमने एकदम ये 2 ट्रांजिस्टर ऑन कर दिए, तो हमने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये वाला जो सर्किट है ना, ये वाली, ये बाजार में आपको एक आईसी की शक्ल में मिल जाती है। तो हमें तो खैर ये वाली आईसी इधर नहीं मिल रही, हमें जो मिल रही है वो है ये, पेशावर में जो आपको मिल रही है उसको एज ब्रिज, डुअल इसलिए कि उसमें 2 एज ब्रिज हैं, 2 मोटर को वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये 250 रुपए की है, ठीक है। इसमें देखें आपके पास ये सर्किट जो है ना, ये किधर गया, ये बनी बनाए आपको मिल गए। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको इनपुट्स दिए हैं, इनपुट्स। तो मैं आपको इनपुट्स दिखाता हूँ इधर,
तो दिस इज हाउ वी विल कनेक्ट इट। ठीक है, ये वो मोटर को हमने दे दिए आउटपुट। कहां से? ये ये पॉइंट आपको दिखाए गए, मोटर का एक टर्मिनल एंड सेकंड टर्मिनल। ये बाकी ट्रांजिस्टर इसके अंदर है, ट्रांजिस्टर इसके अंदर है। ठीक है, 4 ट्रांजिस्टर। अब अगर आपने इसको एक डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इनपुट पे इसके 3 पिन होते हैं हमारे कंट्रोल में इस आईसी के, इनेबल पिन और N1 N2। अगर आपने N1 और N2 पे 0 0 दे दिया तो इट विल मोटर विल ब्रेक, मोटर विल स्टॉप। अंदर ये होगा, वो आईसी खुद ही ये सब कुछ करती है, हमने सिर्फ आईसी को कहना है कि भाई मोटर को स्टॉप कर। और अगर आपने N1 और N2 पे इस पे 0 दे दिया, इस पे 1 दे दिया तो मोटर टर्न्स फॉरवर्ड, और अगर N1 पे 1 दे दिया इस पे तो मोटर टर्न्स बैकवर्ड, बैक। ठीक है, और आखिर में अगर आपने दोनों पे 1 1 दे दिया तो मोटर ब्रेक्स, या दोनों पे 0 तो मोटर ब्रेक स्टॉप। अब ये काम किसने करना है? ये इस बंदे ने करना है, आर्डुइनो ने। ठीक है, तो इसके वो N1 और N2 के साथ कनेक्शन बन गई, और उधर आउट 1 और आउट 2 के साथ मोटर की कनेक्शन बन गई। ठीक है, तो अब मैंने इस मोटर को चलाना है। तो आप लोगों का काम है इसमें, इस कोर्स में, कि भाई कितनों ने आर्डुइनो पहले यूज किया हुआ है? रेज योर हैंड। ये आर्डुइनो भला किस चीज का नाम है? ये किस किस को पता है? रेज योर हैंड प्लीज। अच्छा, ठीक है, तो ये तो खैर से किसी ने, अच्छा ठीक है, और जस्ट 1 पर्सन। आर्डुइनो का किस किस को पता है कि ये क्या चीज है? ठीक है, चलें, कोई नहीं, खैर बस छोड़ दें, जिनके प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा है उन्हीं को समझना है। ठीक है, तो मैं आर्डुइनो में इसमें नहीं जाऊंगा, बट दिस इज व्हाट वी डू थ्रू कोडिंग। फिलहाल आपको मैं इधर लेक्चर एंड कर दूं कि हाउ डू वी कंट्रोल अ डीसी मोटर इन वन डायरेक्शन और अनदर डायरेक्शन। ठीक है, तो और फिर इधर हम स्टॉप कर लेंगे ये वाले चैप्टर। लेकिन आखिर में ये एक टॉपिक कंप्लीट करने की गरज से ये बता दूं कि भाई थिंक ऑफ दिस एज योर आर्डुइनो। दिस हर जॉइंट के हर मोटर के लिए हमने एक कंट्रोलर लगाया हुआ है जो उसको रोटेट करता है क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, रिवर्स और फॉरवर्ड। या आप समझे जॉइंट 1 का मोटर है, ये जॉइंट 2 का मोटर है, उसके लिए अलग कंट्रोलर। ये जॉइंट 3 का मोटर है, उसके लिए अलग कंट्रोलर। कॉन्सेप्ट वही है, वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल ये भेजेगा उसको, उसकी स्पीड को कंट्रोल कम या ज्यादा करेगा, और एज ब्रिज के थ्रू इसके डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। ये 6 के 6, और ये सारे के सारे एक मेन कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं। तो दिस इज हाउ आवर रोबोट लुक्स लाइक। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों के लिए बढ़ जाएगा, बट व्हाट आई हैव डन टुडे इज आई हैव डिस्कस्ड द बेसिक डीसी मॉडल ऑफ अ डीसी मोटर। ठीक है, ऑफ अ सिंगल जॉइंट, एंड वी सॉ दिस इक्वेशन। ठीक है, और एंड दैट्स इट। ठीक है, ये थोड़ा और ज्यादा डेप्थ में जाना बस सही नहीं है। सो वी डिस्कस द मॉडल ऑफ अ सिंगल जॉइंट, मॉडल एंड कंट्रोल ऑफ अ सिंगल जॉइंट। हमने इसको कंट्रोल करना था, Arduino में कोड भी दिखा देते, बट यू गाइस हैव नॉट स्टडीड इट बिफोर, सो आई विल नॉट डू दैट, बट आई हैव गिवन यू अ रफ आइडिया कि भाई किस तरह हम एक आईसी के थ्रू, उसको मोटर ड्राइवर आईसी भी कहते हैं, वी कैन कंट्रोल डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर। इससे आप चाहे विंड विंडोज ऑपरेट करें, चाहे सेडोज ऑपरेट करें, चाहे रोबोट ऑपरेट करें, दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट। ये अगर आपके प्रोजेक्ट में है तो दिस इज द थियरी ऑफ द डीसी मोटर,
एंड उसका जो कंट्रोल है वो आई रिकमेंड यू, आई पोस्ट दीज लेक्चर नोट्स, सब आपने पढ़ने नहीं है लेकिन इसमें बेसिक आइडिया आपको गिवन है कि एक जॉइंट को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं तो बाकी जॉइंट्स का फिर उसी तरह सिमिलर है। तो ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसको थोड़ा सा पढ़ना है तो समझना है, इस पर मैं होमवर्क भी दे दूंगा। ये आईसी इसकी जगह मैंने डिफरेंट बता दिया जो कि पेशावर में भी आपको अवेलेबल है, जस्ट इन केस यू वांट टू डू द सेम एक्सपेरिमेंट बाय योरसेल्फ इन फ्यूचर, ठीक है। और ये इन्होंने बाकायदा उसका एक 2 मोटर इस तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं कि भाई यू कैन मेक अ रोबोट मूव। तो देखें ये जो है इनपुट वोल्टेज हम किस तरह बढ़ाते हैं, ये पीडब्ल्यूएम के थ्रू बढ़ाते हैं। फिजिकली बैटरी तो 12 वोल्ट की है, इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन उसके वोल्टेज को हम रन टाइम में कम या ज्यादा कर सकते हैं बाय गिविंग इट डिफरेंट ड्यूटी साइकिल पीडब्ल्यूएम वेव। देखें तो ये इधर इसका ड्यूटी साइकिल बहुत कम है, ऑन टाइम बहुत कम है, तो 3 वोल्ट इसको मिल रहे हैं 12 में से। इधर ड्यूटी साइकिल 6 वोल्ट है, हाफ एक ही साइकिल में हाफ टाइम के लिए ऑन है, हाफ के लिए ऑफ है, इसको 6 वोल्ट मिल रहे हैं। और आखिर में जब हमने उसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए ऑन कर दिया तो इसको 10.8 मिल रहे हैं, ठीक है, एवरेज। तो उसके मुताबिक इसको करंट कम या ज्यादा कर रहे हैं, इसकी इसकी टॉर्क और स्पीड मुतासर हो रही है, ठीक है। तो ये अर्डुइनो उसको पीडब्ल्यूएम दे रहे हैं एक ट्रांजिस्टर के थ्रू, मॉसफेट के थ्रू, और इसको कंट्रोल, ये कैपेसिटर भी लगे हुए हैं थोड़े से। सो द वोल्टेज इज गोइंग टू इट एंड दिस इज द एज ब्रिज साइकिल। ये एज ब्रिज किधर था, ये इधर तो नहीं था, एक ही ट्रांजिस्टर था, लेकिन नेक्स्ट अगर आप इसका डायरेक्शन भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप 4 ट्रांजिस्टर स्टाइल में लगाएंगे। तो या तो खुद ही 4 इस तरह के ट्रांजिस्टर ले लें, और या ये ट्रांजिस्टर एक आईसी की शक्ल में आते हैं इधर। अब देखें वहां से वोल्टेज क्रिएट कर रहे हैं, ड्यूटी साइकिल हमने ये रखा हुआ है तो 3 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन ये 4 ट्रांजिस्टर के ऑन ऑफ पैटर्न से डायरेक्शन हम डिसाइड